children, now the next topic is electric field due to electric dipole at any general point K. First I have taken on the axis, second I have taken on equator. Now at any point means field intensity at any point. It's a general case. And let that general point is point K. Children, see here, AB is a dipole. AB is dipole of length 2L. And dipole moment is P. Here is minus Q, here is plus Q. Then dipole moment क्या होगा? That will be P from A to B. Right here, yeah, P, A से B तक, A to B. And take a point K at any point in the space at a distance R from the center of dipole. Center C से K डिस्टेंस क्या है? R है. And this CK makes angle theta, this theta with the length of dipole. AB से ये CK angle theta बनाएंगे, हमने assume किया हुआ है. Now resolve this dipole moment P along this CK and perpendicular to the CK. AB is what? P. Then along CK in this direction that will be, means ये A dash B dash ये हो जाएगा P cos theta. P cos theta. And ये perpendicular A double dash B double dash क्या हो जाएगा? P sin theta. तो हमने क्या लिया? एक डाइपोल लिया AB ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड एक पॉइंट K लिया इन ए स्पेस जो AB के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है एंड आई हैव रिजॉल्व दिस डाइपोल मोमेंट अलोंग दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड फाइंड क्या किया? कंपोनेंट्स P cos थीटा एंड P sin थीटा. हमें लिया क्या है? AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट है P एंड P का डायरेक्शन है फ्रॉम A टू B. P डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B. A से B माइनस Q टू प्लस Q. सेकेंड क्या लिया? एक पॉइंट K लिया इन द स्पेस at a distance R from C. C is what? Center of dipole. Center of dipole AB. इतनी चीजें हमने ली है, एक पॉइंट K लिया है. ठीक है? Now resolve. एक लाइन और लिखते हैं इस थीटा के लिए. Let CK makes angle theta with dipole moment P. हमेशा मान लिया कि डाइपोल मोमेंट मींस AB के साथ ये लाइन थीटा एंगल फॉर्म कर रही है. ऑन रिजॉल्विंग, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं 11th में. ऑन रिजॉल्विंग P into its components we get क्या मिलेगा हमको? फर्स्ट
P cos theta along CK, P sin theta perpendicular to the CK. We get P cos theta along CK. P cos theta along CK, ये क्या है? A dash B dash. This P cos theta is the dipole moment of dipole A dash B dash. एक डाइपोल है A dash B dash जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? P cos theta. सेकेंड P sin theta परपेंडिकुलर टू द CK. CK के परपेंडिकुलर टू CK, ये है क्या? डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल A डबल डैश B डबल डैश. चलिए, इतना एक सिंपल एक्सप्रेशन लिख लिया हमने. इसके बाद क्या फाइंड किया? P को रिजॉल्व किया इनटू P cos थीटा एंड P sin थीटा. इन दोनों का रिजल्टेंट P ही आएगा. गॉट इट? अब हम इसको दो अलग अलग डाइपोल एज्यूम कर सकते हैं. फर्स्ट A dash B dash whose dipole moment is P cos theta, and second A double dash B double dash whose dipole moment is P sin theta. अब इस P को आप भूल जाओ जो स्टार्टिंग में दिया है. Now two dipoles are given with dipole moments P cos theta and P sin theta. Now see point K. Point K is here. Point K is here. And see A dash B dash. हमने इसको क्या माना है? एक डाइपोल की तरह से एज्यूम किया है. Means अगर A dash B dash is dipole, then for this dipole this K is what? Axial point. इसके एक्सिस पे है. Got it? कहां पे है? Axis पे. And if you see dipole A double dash B double dash, this one. For this dipole, K is where? On equator. And we have calculated axial electric field and इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कुछ करना नहीं है, हमको पहले से पता है कि एक्सिस पे क्या होता है और इक्वेटर पे क्या होता है. ओके, नाउ स्टार्ट. फॉर A dash B dash, this one, point K is on axis, is on its axis. इसका मतलब हम इसके लिए एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. एंड वी हैव लर्न एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल. अलोंग द डाइपोल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. E1. ओके, आइए फाइंड करते हैं. देयरफॉर E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. क्या? 2p upon r cube. तो 2 तो लिख दिया यहां पे, लेकिन A dash B dash यहां पे डाइपोल मोमेंट इज P cos थीटा नॉट P. तो 2p cos थीटा. A dash B dash के अलॉन्ग क्या है? P cos थीटा है अपॉन r क्यूब. यहां से यहां तक का हमने क्या माना है? डिस्टेंस r माना है, r क्यूब. इसको हम मान लेते हैं C m ले लेते हैं अलॉन्ग Km. Km मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट के पैरेलल. And for A double dash B double dash, this dipole point K, देखो कहां पे है? अगर इसको हम एज्यूम करते हैं then point K is on equator. Is on equator. Therefore E2. But see here, in the case of equatorial electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम ए डैश टू बी डैश. यहां पे ए टू बी, ए डैश टू बी डैश एंड ए डबल डैश टू बी डबल डैश. ये है along this और ये है along this. And field intensity is opposite to the dipole moment. Dipole moment is along this, then electric field will be along this. उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा. E2. Children, listen carefully. E2. Okay, and these two are perpendicular. And इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? That is 1 upon 4 pi epsilon naught. K is equatorial point. यहां पे क्या होता है? P upon r cube. But here P is what? P sin theta. r cube. और इसको मान लेते हैं K, ये पॉइंट मान लेते हैं N है. Along Kn. Kn का मतलब अपोजिट टू P. नाउ सी हमने ये दो फाइंड कर लिया, दिस वन एंड दिस वन. सी E1 एंड E2 in diagram, these two are perpendicular to each other. अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Like this, and its resultant is given by this diagonal, this one. And if two vectors are perpendicular, the resultant is what? As E1 and E2 are perpendicular, that's why E is what? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा. दिस वन. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो रिलेटेड क्या होता है? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. एंड E1 E2 ये हमने लिखा है सिर्फ मैग्नीट्यूड. अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे हियर एंड हियर. पुट करने के बाद क्या मिलेगा? आइए देखते हैं. E1 दिस वन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब. 2p नहीं 2p cos थीटा आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन आर क्यूब उसका होल स्क्वायर. देखिए हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं और क्या क्या रूट से बाहर आ जाएगा. ये देखिए ये इसका स्क्वायर है. 2 का नो 2 इज हियर बट हियर इज नॉट 2. p यहां पे है, यहां पर है. स्क्वायर इसका हो जाएगा r क्यूब. ओके, देन यू कैन राइट p अपॉन r क्यूब. पूरा लिखो भाई. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब. इतनी चीज आप कॉमन ले सकते हो. अंदर बचा क्या? यहां पे बचेगा 2 cos थीटा, यहां बचेगा sin थीटा. स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 4 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन दिस स्पेस. इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. राइट इट इन दिस वे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब. जो लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको आप अगर ऐसा लिख दें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 मिलेगा. यहां पे ये है नहीं. Therefore E is equal to P upon 4 pi epsilon naught r cube. रूट में क्या आएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1.
3 cos square theta प्लस 1। सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, लेट इट इज इक्वेशन 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल AB at any point, general case, P upon 4 pi epsilon naught r cube root 3 cos square theta plus 1। आइए देखते हैं इसका यूज करके कैन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड ऑन इक्वेटर। दिस इज थीटा, मेकिंग एंगल विद दिस ओरिजिनल डाइपोल AB। ओके, नाउ rub it this part। From equation 3, अगर मैंने ऐसा पुट कर दिया थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या हो गया 0, थीटा इज दिस वन। अगर थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए, 0 लाइक दिस, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये पॉइंट के कहां पे आएगा, पॉइंट के विल बी हियर, तब ये यहां से घूम घूम के यहां पे आ जाएगा पॉइंट के। अगर पॉइंट के यहां पे आ गया देन फॉर दिस डाइपोल पॉइंट के इज ऑन द एक्सिस, मींस इफ थीटा इज 0 देन के क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। आइए पुट करते हैं क्वेश्चन 3 में, देन E A हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आइए 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पे क्या है 0 प्लस 1 एंड cos में क्या होता है 1 होता है। यहां क्या बचा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 4, रूट लेंगे आ जाएगा 2। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। कुछ याद आ रहा है क्या, हमने ऐसा ही फाइंड किया था इन द केस ऑफ एक्सियल पॉइंट। ओके, एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब ये जो थीटा है इसको घुमा के ऐसा पढ़ दो, तब पॉइंट के कहीं यहां पे होगा इस पॉइंट पे, और अगर पॉइंट इज हियर देन फॉर दिस डाइपोल AB एक ऐसा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, तो K इज ऑन इक्वेटर, तो क्या हो जाएगा E को मिलेगा E इक्वेटोरियल, ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 90 प्लस 1 एंड cos 90 होता क्या है 0। ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 बाई रूट 1, तो मिला क्या हमको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। इंटरेस्टिंग, सी हमने यही फाइंड किया था इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर आपने जनरल केस अच्छे से समझ लिया देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन write it and try to understand